Hello students, we have studied the property of multiplication. Now we will discuss about exercise 1b of R.S. Agrawal. Exercise 1b. First question is multiply. Okay. We have to learn about the sign predictions. First of all, we should know plus plus will be plus, minus minus will be plus, plus minus will be minus, and minus plus will be माइनस. ओके, इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 इंटू 9. 16 प्लस 9 इज ऑल्सो प्लस. प्लस प्लस विल बी प्लस, सो इट विल बी 144. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 इंटू माइनस 6. 18 प्लस and it is minus. Plus minus will be minus. It will be minus 108. Third one is 36 into minus 11. It will be 396. Plus minus will be minus. Okay. Next one is minus 28 by 40. By means multiply. माइनस 28 किससे मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों को? 14 से. इट विल बी 392. माइनस प्लस विल बी माइनस. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ वन इज minus 53 into 18. minus 53 into 18. We will multiply 53 by 18. It will be 954. Minus plus, it will be minus. Sixth one is minus 35 by 0. और हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0. व्हेन एन इंटीजर is multiplied by 0, answer will be 0. Okay. Seventh one is 0 by minus 23, same, it will also be 0. Eighth problem, minus 16 into minus 12. 16 into 12 कितना हो जाएगा? It will be 192. Minus minus will be plus. Okay. Copy this. Ninth question. Ninth one is minus 105 by minus 8. It will be 840. Minus minus will be plus. 10th question. Minus 36 by minus 50. It will be 1800. And minus minus will be plus. 11th question, minus 28 into minus 1. Minus minus will be plus, and 28 1 times 28. 12th question. 12th one is 25 into minus 11. Plus minus will be minus, and it will be minus 275. Okay. So first part multiply is completed. Now we will discuss about second part. Find each of the following products. We need to find product. Whenever they ask about product, we will do multiply. First question is 3 into 4 into minus 5. 3 4s are 4 times 12, 12 5 times 60. See this.
plus plus will be plus and plus minus will be minus. Next one is 2 into minus 5 into minus 6. 2 5 times 10, 10 6 times 60. Plus minus will be minus and minus minus will be plus. Next part is minus 5 into minus 8 into minus 3. 5 8 times 40, 43 times 120. Minus minus it will be plus and plus minus will be minus. Okay. D section. Minus 6 into minus 10. 6 times 36, 36 10 times 360. Minus plus will be minus and minus minus will be plus. So there will be no sign. Next is 7 into minus 8 into 3. 7 8 times 56, 56 3 times 168. Plus minus will be minus and minus plus will be minus. 7 there is no sign, so it will be plus. Plus minus will be minus and minus plus will be minus. Okay. Last part is minus 7 into minus 3 into 4. 7 3 times 21, 21 4 times 84 and minus minus will be plus and plus plus will be plus. So there will be no sign. 84 it will be answer. Okay. Third part, find each of the following. Third part is find each of the following. First question. Minus 4, minus 5, minus 8, minus 10. 4 into 5, it will be 20. 20 into 8, it will be 160. 160 into 10, it will be 1600. 4 into 5, 20. Minus minus will be plus. We will copy the remaining digits same. 20 into 8, 160. Plus minus will be minus. 160 into 10, it will be 1600. 16 1 times 16, 1020. It will be 20 here. Minus minus will be plus. Okay. Next question is six 5 times, it will be 30. Minus minus will be plus. 30 into 7, 210. Plus minus will be minus. 210 into 2, it will be 420. Minus minus will be plus. 420 into 3, it will be 1260. And 420 is plus and it will minus. It is minus. So it will be minus 1260. Okay. Okay. Next part. Next is third question. It is minus 60 into minus 10 into minus 5 into minus 1. 60 into 10, it will be 600. 5 1 times 5. Okay. Minus minus will be plus, minus minus will be plus. 6 5 जा 30 और 2 जीरो ये लगे हुए हैं आपके, 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे हम लोग. प्लस प्लस विल बी प्लस, so आंसर विल बी 3000. नेक्स्ट पार्ट इज minus 30 into minus 20 into minus 5. We need to multiply all these three digits.
3 into 2, it will be 6. 1020. माइनस माइनस इज प्लस, एंड यहाँ आपका माइनस ही रहेगा. 6 5 टाइम्स 30 और 2 0 यहीं लगे हुए, तो ये इट विल बी 3000 प्लस माइनस इट विल बी माइनस. नेक्स्ट वन इज -3 -3 6 times. We need to multiply 3 6 times. ओके, मैं बताया था पीछे, अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई इवन टाइम्स हो रही है और उसमें माइनस लगा हुआ है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा. 3 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, इट इज 6 इज इवन, सो हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे. ओके, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 टाइम्स. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. It is like this. We need to write 3 how many times? 6 times. 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 times 81, 81 9 times 7 2 9. I have told you that if a number is multiplied even times, it is 6. 6 is even, so we do not place negative sign. It will be positive 7 to 9. Copy these sums. Now sixth one is -5 into -5 into -5 into 5 times. We need to multiply 5 times. 5 5 ja 25, 25 5 ja 125, 125 5 times 625, 625 5 times 3125. ओके, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग पूरा लिख के दिखाएंगे. 5 times, that means it is odd times, then we place negative. If a number is multiplied odd times, so we will place minus, and answer will be 5 5 25, 25 25 5 times 125, 125 5 times 625, and 625 5 times it will be 3125. It is answer. Next one is -1 -1 200 times, and 200 is odd or even? 200 is odd or even? It is even, so we do not place negative sign, and answer will be plus. मैंने बताया था पीछे भी, अगर हम लोग -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -1, और अगर हम लोग -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी +1. लास्ट पार्ट इज -1 171 टाइम्स, 171 बार, 171 टाइम्स, एंड 171 इज ऑड, सो आंसर विल बी -1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक सवाल मिलेगा आपको यहाँ. फोर्थ क्वेश्चन. What will be the sign of the product of if we multiply 90 negative integers and 9 positive integer? If we multiply
90 नेगेटिव इंटीजर्स, 90 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा प्रोडक्ट में, 90 इज इवन, सो इट विल बी पॉजिटिव. इफ वी मल्टीप्लाई 9 पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग को पता है पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी पॉजिटिव ही आएगा, उसमें तो कोई ऑड इवन का प्रॉब्लम ही नहीं है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्लस एंड प्लस, प्लस प्लस क्या बताया था मैंने, प्लस. तो व्हाट विल बी द साइन, साइन क्या होगा प्रोडक्ट का, प्लस होगा. अगर 90 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें 9 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो आंसर, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, 90 इज इवन, सो आंसर विल बी माइनस. ओके, product will be positive. Next question is fifth question. What will be the sign of the product if we multiply 103 negative integers? Sign of product of 103 negative integers. 103 is odd, the sign will be minus, and 65 positive integers. Sign of product of 65 positive integers, it will be plus. प्लस में तो प्लस ही आना है, लेकिन नेगेटिव में देखना पड़ेगा कि ऑड टाइम से इवन टाइम से, ऑड टाइम से तो इट विल बी माइनस. अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ माइनस एंड प्लस, इट विल बी माइनस. तो प्रोडक्ट में साइन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव. ओके, सिंप्लीफाई. नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई. सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. सेक्शन इज सिंप्लीफाई, बहुत ध्यान समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7. यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है, -8 कॉमन है. हम लोग -8 को बाहर लिख लेंगे और लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन. अंदर क्या रहेगा, 9. साइन किसका लगा हुआ है, ये प्लस. -8 तो बाहर आ चुका है, क्या बचा अंदर, सिर्फ 7. 9 plus 7 will be 16. 16 into 8, 128. Minus plus will be minus. Okay. Second question. What is common in both parts? 9 is common. 9 will be taken as common. और इस पार्ट में हमारा क्या बचेगा, -13 बच गया. साइन क्या लगा हुआ है, ये जो साइन यहाँ लगा वो यहीं आएगा, प्लस क्या रह गया, -7. और मैंने बताया था दो साइन साथ साथ नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे. प्लस माइनस विल बी माइनस. ओके, माइनस माइनस विल बी प्लस. 13 एंड 7 विल बी 20, और 13 इज ग्रेटर वैल्यू, और माइनस यहाँ लगा हुआ तो हम लोग यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस. 9 इंटू 20 180, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस. आंसर विल बी -180. नेक्स्ट पार्ट इज
थर्ड 20 इंटू -16 प्लस 20 इंटू 14. What is common? 20 is common. What is remained? -16 plus 14. माइनस प्लस विल बी माइनस 16 बड़ा वैल्यू उसका माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे. प्लस माइनस विल बी माइनस. इट विल बी -40. नेक्स्ट क्वेश्चन. -16 इंटू -15 प्लस -16 इंटू -5. व्हाट इज कॉमन? -16 इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? -15 इज लेफ्ट. प्लस प्लस लगाएंगे -5 इज लेफ्ट. ओके. -15 प्लस माइनस विल बी माइनस. माइनस माइनस विल बी प्लस. और ग्रेटर वैल्यू का माइनस लगा हुआ इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस. माइनस माइनस विल बी प्लस. It will be 320. Answer will be 320. Okay, you can copy now. Next question, fifth. बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग और प्रॉपर कॉपी में करते रहिएगा इन क्वेश्चंस को. और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज -11 इंटू -15 -11 इंटू -25. What is common in both parts? -11 is common. Then -15 is left in this section. -25 is left. प्लस यहाँ लगा, प्लस लगाना पड़ेगा. -25 था यहाँ लगाना पड़ेगा. और दो साइन साथ साथ नहीं आएंगे इसलिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. प्लस माइनस विल बी माइनस. माइनस माइनस विल बी प्लस. एंड ग्रेटर वैल्यू हैज माइनस सो वी विल प्लेस माइनस. माइनस माइनस विल बी प्लस. 440. ओके. आंसर विल बी 440. सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट इज 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12. ओके. What is common in both part? -12 is common. 10 is left, 5 is left. 10 plus 5, it will be 15. 15 into 12, 180. Minus plus will be minus. Answer will be -180. Okay. Next question is 7th. Okay. Seventh question is -16 into -8 plus -4 into -8. What is common in both parts? As you can see, -8 is common in both parts. -16 plus minus will be minus. Minus minus will be plus. और ग्रेटर वैल्यू का अगर माइनस लगा हुआ है इसलिए हम माइनस लगाएंगे. ओके. 20 इंटू 8 इट विल बी 160. माइनस माइनस विल बी प्लस. ओके. ये इस मल्टीप्लाई में नहीं देखेंगे बड़े वाले के आगे क्या लगा हुआ है. मल्टीप्लाई में वही होगा जो पीछे बताया था मैंने सिंबल्स का कॉम्बिनेशन. माइनस माइनस विल बी प्लस. ओके. लास्ट पार्ट 8th. -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28. What is common in both part? -26 is common. 72 plus 28. Plus plus will be plus and multiply. Minus plus will be 26 one times 26 और 2 0 लगा देंगे आगे सिंपली. माइनस प्लस विल बी माइनस. आंसर इज -2600. कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगातार यूज कर रहे हैं? इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन? a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी और जो साइन यहाँ लगा है वो यहाँ आएगा a इंटू सी. हम लोग यही तो लगा रहे थे प्रॉपर्टी बार बार. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने इन सम्स में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. ओके.
नेक्स्ट सेवेंथ, seventh is fill in the blanks. First part, minus 6 into what is equal to 6. ध्यान रखेंगे, अभी साइन मत देखें, अभी बताएं 6 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 आ जाए, 1 से कर देंगे. यहाँ क्या लगा है माइनस, ओके. यहाँ पे क्या लगा है इसके आगे माइनस, और साले के 6 से आगे क्या लगा वो प्लस. माइनस प्लस विल बी माइनस, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 18 इंटू डैश इज इक्वल टू माइनस 18. साइन नहीं देखेंगे, फिर से बता रहा हूँ साइन नहीं देखेंगे. 18 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे कि 18 आ जाए, 1 से कर देंगे. माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 8 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू वॉट इज मिसिंग, माइनस 9 माइनस 8 इज मिसिंग, सो इट विल बी माइनस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू what is missing, 7 is missing, so there will be 7. Okay, fifth part, what is missing, 3 minus 6 minus 5 is missing, so we will place minus 5 here. Last question of this section, minus 5 into what will be 0. माइनस 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 0 से. माइनस 5 इंटू 0 विल बी 0. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, next question 8th, in a class test containing 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are rewarded for every incorrect answer and 0 for each question non attempted. Okay, in a class containing 10 question, total questions कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे 10 हैं. उसके बाद है मार्क्स रिवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स रिवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं 5 मार्क्स. नेक्स्ट, मार्क्स रिवॉर्डेड फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं -2. ओके, मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टेड, मार्क्स रिवॉर्डेड फॉर नॉन अटेम्प्टेड. जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया है उस पर कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको नंबर मिलेंगे ना ही आपके नंबर कटेंगे. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर. रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर कितने मिल रहे हैं 5, तो 4 के कितने मिलेंगे 4 इंटू 5. ओके, प्लस एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, और एक इनकरेक्ट पे कितने मिल रहे हैं -2, तो 6 पे कितने मिलेंगे -2, दोनों को प्लस कर देंगे. 4 5 टाइम्स 20, प्लस माइनस विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी 8. तो ये किसका स्कोर आ गया, ये आ गया रवि का स्कोर. रवि विल गेट 8 मार्क्स. रवि को कितने मार्क्स मिलेंगे 8 मार्क्स मिलेंगे. सेकंड क्वेश्चन इज हीना गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट. ओके, 5 करेक्ट
एक करेक्ट पे कितने मिल रहे हैं 5, तो 5 के करेक्ट मिलेंगे 5 इंटू 5, और 5 इनकरेक्ट है तो एक करेक्ट के -2 है, तो 5 इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे 5 इंटू -2, 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10, प्लस माइनस विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस, एंड ग्रेटर वैल्यू हैज प्लस, सो इट विल बी 15। ये किसका स्कोर है 15, किसका स्कोर है ये है आपका रीनू। रीनू विल गेट 15 marks, रीनू विल गेट 15 marks, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ड, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, फॉर 1 करेक्ट आंसर, फॉर 1 करेक्ट आंसर 5 marks is awarded, then for 2 answer it will be 2 into 5, and 5 incorrect -2 is awarded for 1 incorrect, and for 5 incorrect answers 5 and 2 -2 marks will be rewarded। 2 5 times 10, 5 2 times 10, plus minus will be minus, plus minus will be minus, 10 minus 10 0, तो हीना विल गेट 0 marks, हीना के नंबर ही नहीं आए, हीना के नंबर ही नहीं आए। अब आपको क्या बनना है यहाँ पे, हीना बनना है, रीनू बनना है, या रवि बनना है? आपको बनना है रीनू से भी अच्छा, ओके। ये तो मजाक की बात हो गई। खैर, रवि को 8 marks मिला है, रीनू को 0 मिला, सही सॉरी रीनू को 15 मिला है, और आपका हीना को कितना मिला है 0। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन 9, ओके। Ninth question, which of the following are true and which are false? The product of a positive and a negative integer is negative. First one is product of a positive integer and a negative integer is positive negative will be negative, and वो भी क्या कह रहे हैं नेगेटिव, ये बात सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। मैंने बताया था जब किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, सो ये हमारा कैसा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। 3 नेगेटिव इंटीजर हैं और जब भी हम लोग ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, अब वो भी यही बोल रहे हैं, तो ये कैसी बात है उनकी ट्रू। नेक्स्ट वन इज every integer when multiplied with -1 gives us multiplicative inverse। जब हम लोग किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, ऐसा तो नहीं है। वी गेट एडिटिव इनवर्स, हमें क्या मिलता है लेकिन वो लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, जबकि हमें मिलता क्या है एडिटिव इनवर्स। अगर किसी नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हम लोग किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है हमें, बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है मल्टीप्लिकेशन में। मतलब हम लोग अगर ऑर्डर बदल दें तो क्या प्रोडक्ट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर एसोसिएटिव। अगर हम लोग 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें उसका ऑर्डर बदल के तब भी आंसर विल रिमेन सेम, तो ये भी हमारा ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो मल्टीप्लिकेशन में होती है। Every non-zero integer has a multiplicative inverse as an integer. Every non-integer has multiplicative inverse as an integer. हर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है नहीं होता है? होता है। हर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नहीं होगा? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। सोचो थोड़ा सा, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ले लो,
मैंने -5 ले लिया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -5 का? माइनस का 1/5। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारी बात फॉल्स, यानी कि हर इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर नहीं होता है। तो ये हमारी बात फॉल्स हो गई। ओके, सो 1B इज कंप्लीटेड। 1B कंप्लीट हो गई हमारी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। 1A and 1B is completed with properties. Hope you like this lecture. Thank you, students.